صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں اولیاء کرام کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، آپ حضرات توجہ کے ساتھ سنیں۔ اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے وہ مقبول بندے ہیں جو اس کی ذات و صفات کو پہچاننے والے، اس کی فرما برداری اور عبادت کی پابندی کرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں قرب خاص عطا فرماتا ہے۔ ریاضت و مجاہدہ کر کے بندہ ولایت نہیں پا سکتا، یہاں میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جسے چاہتا عطا فرماتا ہے۔ اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ بہت بڑی طاقت و قوت عطا فرماتا ہے۔ ان طاقت و قوت سے وہ پیڑ پودوں، پتھروں، جانوروں سے بات کرتے ہیں، بندوں سے مصیبتیں دور کرتے ہیں، دور و دراز کا حالت انہیں معلوم ہوتے ہیں۔ اولیاء کرام کے ان انوکھے کاموں کو کرامت کہتے ہیں۔ اولیاء کرام کی کرامت در حقیقت انبیاء کے معجزات ہیں۔ ان کی کرامتوں کا انکار کرنے والا گمراہ ہے۔ ان سے مدد مانگنا اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کو پسند ہے۔ جو ان سے مدد مانگتا ہے وہ ان کی مدد فرماتے ہیں۔ ان کی مزارات پر حاضری دینا مسلمان کے لیے سعادت و برکت کی بات ہے۔ انہیں دور نزدیک سے پکارنا سلف صالحین کا طریقہ ہے۔ انہیں اصال ثواب کرنا مستحب ہے اور برکتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں، میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا۔ میری بات بن گئی ہے، تیری بات کہتے کہتے، تیری بات کہتے کہتے، تیرے شان میں آؤ، تیرے شان نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے بندوں تک اپنے احکام پہنچانے کے لیے بھیجا ہو۔ نبی کی کچھ شانیں بتائیں۔ نبی کو اللہ تعالیٰ نے غیب کی باتوں کا علم عطا فرماتا۔ نبی معصوم ہوتے، نبی معجزات دکھاتے، اللہ پاک ان سے ہمیشہ خوش رہتا ہے، وہ کبھی بھی اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرتے۔ معصوم کا کیا مطلب ہے؟ جو اللہ پاک کی حفاظت میں ہو، اس وجہ سے اس سے گناہ واقع نہ ہو۔ کوئی عورت یا جن نبی ہو سکتے ہیں؟ نہیں، انبیاء سب کے سب انسان تھے، کوئی عورت یا جن بلکہ فرشتہ بھی نبی نہیں ہو سکتا۔ جو کسی نبی کی گستاخی کرو اس کا کیا حکم ہے؟ وہ کافر ہے، مسلمان نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں سید صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کا جواب دیں گے؟ جی ہاں، انشاءاللہ۔ کیا اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی نازل فرمائی ہیں؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبیوں کو صحیفوں اور آسمانی کتابیں اتاری ہے۔ کچھ مشہور کتابوں کے نام بتانا مجھے کہ کون کون سے نبی پر نازل ہوئی؟ 4 آسمانی کتابیں مشہور ہے۔ توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام
जो हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। क्या सही रोज सही जबूर सही इंजील आजकल कहीं मिलती है? जी नहीं, ये किताबें जैसी नाज़िल हुई थी और वैसी बाकी नहीं रही। ईसाइयों और यहूदियों ने इन किताबों में अपनी मर्जी से घटा बढ़ा कुछ का कुछ कर दिया। क्या कुरान मजीद को अपनी मर्जी से घटा बढ़ा सकते हैं? नहीं, कुरान मजीद बदल नहीं सकता, इसलिए का भी फर्क नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद अपने दिल पे करम पर दिया है। क्या कुरान को बगैर वजह के छू सकते हैं? कुरान को बगैर वजह के छूना हराम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शराबी का भी एक उम्र मुकर्रर है, जब वो उम्र पूरी हो जाएगी तो दुनिया में फना हो जाएगी, हर चीज मिट जाएगी, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। क़यामत के दिन हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे। सूर सिंह की शक्ल की एक चीज होगी जिसकी आवाज से तमाम जानवर, इंसान, जमीन और आसमान, चांद, सूरज, हर चीज, दुनिया की हर चीज टूट फूट कर फना हो जाएगी, मिट जाएगी, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। इसी को क़यामत कहते हैं। क़यामत की कुछ निशानियां यह है, ईमान बचाना, लोगों को ईमान बचाना इतना मुश्किल हो जाएगा, लोग कब्र पर जाकर यह तमन्ना करेंगे, काश मैं इस कब्र में होता, काश मैं इस कब्र में होता। अल्लाह अकबर। लोग माँ बाप की नाफरमानी करेंगे, लोग अमानत में खयानत करेंगे, ज़कात देना लोगों पर गिरा गुजरेगा, लोग दुनिया हासिल करने के लिए इल्म दीन सीखेंगे, गैरों से मेल जोल रखेंगे, गैरों से मेल जोल रखेंगे। जो बदकार लोग हैं वो कौम के लीडर हो जाएंगे, जो बदकार लोग हैं वो कौम के लीडर हो जाएंगे। जो चरवाहे लोग हैं, जो कम दर्जा के लोग हैं, वो ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहने लगेंगे। क़यामत की और भी निशानियां हैं, आप किताबों में देखेंगे। क़यामत कब कायम होगी इसका इल्म सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को है। अलबत्ता यह बताया गया है क़यामत मुहर्रम की 10 तारीख जुमा के दिन होगी। या अल्लाह हमें ईमान पर मौत अता फरमा, या अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं औलिया किराम के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आप हजरात तवज्जो के साथ सुने। औलिया किराम अल्लाह ताला के वो मकबूल बंदे हैं जो उसकी ज़ात व सिफ़ात को पहचानने वाले, उसकी फरमाबरदारी और इबादत की पाबंदी करते हैं और गुनाहों से बचते हैं। उन्हें अल्लाह ताला अपने फज़ल व करम से अपनी बारगाह में क़ुर्ब ख़ास अता फरमाता है। रियाज़त व मुजाहदा करके बंदा विलायत नहीं पा सकता। यहाँ में अल्लाह ताला अपने फज़ल से जिसे चाहता अता फरमाता है। औलिया किराम को अल्लाह ताला बहुत बड़ी ताकत व क़ुव्वत अता फरमाता है। इन ताकत व क़ुव्वत से वो पेड़, पौधों, पत्थरों, जानवरों से बात करते हैं, बंदों से मुसीबतें दूर करते हैं, दूर दराज का हालत उन्हें मालूम होते हैं। औलिया किराम के इन अनोखे कामों को करामत कहते हैं। औलिया किराम की करामत दर हकीकत अंबिया के मुअज्जिज़ात हैं। इनकी करामतों का इनकार करने वाला गुमराह है। उनसे मदद मांगना अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम को पसंद है। जो उनसे मदद मांगता है वो उनकी मदद फरमाते हैं। उनकी मज़ारात पर हाजिरी देना मुसलमान के लिए सादत व बरकत की बात है। उन्हें दूर नज़दीक से पुकारना सलफ़ सालिहीन का तरीका है। उन्हें इसाले सवाब करना मुस्तहब है और बरकतें हासिल करने का जरिया है। या अल्लाह ताला हमें औलिया किराम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सजाता हूँ सरकार की महफिले में, सजाता हूँ सरकार की महफिले। मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। मेरी बातें बन गई
नबी किसे कहते हैं? नबी उस बशर को कहते हैं जिसे अल्लाह ताला ने बंदों तक अपने अहकाम पहुंचाने के लिए भेजा हो। नबी की कुछ शान बताएं। नबी को अल्लाह ताला ने गैब की बातों का इल्म अता फरमाता। नबी मासूम होते, नबी मौजज़ात दिखाते। अल्लाह पाक इनसे हमेशा खुश रहता है, वो कभी भी अल्लाह पाक की नाफरमानी नहीं करते। मासूम का क्या मतलब है? जो अल्लाह पाक की हिफाजत में हो, उस वजह से उससे गुनाह वाक़ई न हो। कोई औरत या जिन नबी हो सकते हैं? नहीं, अंबिया सबके सब इंसान थे। कोई औरत या जिन बल्कि फरिश्ता भी नबी नहीं हो सकता। जो किसी नबी की गुस्ताखी करो उसका क्या हुक्म है? वो काफिर है, मुसलमान नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमें सैयद साहब भाई मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, आप उसका जवाब देंगे? जी हाँ, इंशाअल्लाह। क्या अल्लाह ताला ने किताबें भी नाजिल फरमाई है? जी हाँ, अल्लाह ताला ने बहुत से नबियों पर सहीफों और आसमानी किताबें उतारी है। कुछ मशहूर किताबों के नाम बताएं मुझे कि कौन कौन से नबी पर नाजिल हुई? 4 आसमानी किताबें मशहूर है। तौरात जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ज़बूर जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, इंजील जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, कुरान मजीद जो हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। क्या सही क़ुरान, सही ज़बूर, सही इंजील आजकल कहीं मिलती है? जी नहीं, ये किताबें जैसी नाजिल हुई थी और वैसी बाकी नहीं रही। ईसाइयों और यहूदियों ने इन किताबों में अपनी मर्जी से घटा बढ़ा कुछ का कुछ कर दिया। क्या कुरान मजीद को अपनी मर्जी से घटा बढ़ा सकते हैं? नहीं, कुरान मजीद बदल नहीं सकता, इसलिए घर का भी मर्द नहीं बोल सकता, क्योंकि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद अपने जज्बे करम पर दिया है। क्या कुरान को बगैर वजह के छू सकते हैं? कुरान को बगैर वजह के छूना हराम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शराबी का की एक उम्र मुकर्रर है, जब वो उम्र पूरी हो जाएगी तो दुनिया भी फना हो जाएगी, हर चीज मिट जाएगी, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। क़यामत के दिन हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे। सूर सिंह की शक्ल की एक चीज होगी जिसकी आवाज से तमाम जानवर, इंसान, जमीन और आसमान, चांद, सूरज, हर चीज, दुनिया की हर चीज टूट फूट कर फना हो जाएगी, मिट जाएगी, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। इसी को क़यामत कहते हैं। क़यामत की कुछ निशानियां यह है, ईमान बचाना, लोगों को ईमान बचाना इतना मुश्किल हो जाएगा। लोग कब्र पर जाकर यह तमन्ना करेंगे, काश मैं इस कब्र में होता, काश मैं इस कब्र में होता। अल्लाह अकबर। लोग माँ बाप की नाफरमानी करेंगे, लोग अमानत में खयानत करेंगे, ज़कात देना लोगों पर गिरा गुजरेगा, लोग दुनिया हासिल करने के लिए इल्म दीन सीखेंगे, गैरों से मेल जोल रखेंगे, गैरों से मेल जोल रखेंगे। जो बदकार लोग हैं वो कौम के लीडर हो जाएंगे, जो बदकार लोग हैं वो कौम के लीडर हो जाएंगे। जो चरवाहे लोग हैं, जो कम दर्जा के लोग हैं, वो ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहने लगेंगे। क़यामत की और भी निशानियां हैं, आप किताबों में देखेंगे। क़यामत कब कायम होगी इसका इल्म सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को है। अलबत्ता यह बताया गया है क़यामत मुहर्रम की 10 तारीख जुमा के दिन होगी। या अल्लाह हमें ईमान पर मौत अता फरमा, या अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं औलिया किराम के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आप हजरात तवज्जो के साथ
سنیں۔ اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے وہ مقبول بندے ہیں جو اس کی ذات و صفات کو پہچاننے والے، اس کی فرما برداری اور عبادت کی پابندی کرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں قرب خاص عطا فرماتا ہے۔ ریاضت و مجاہدہ کر کے بندہ ولایت نہیں پا سکتا، یہاں میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جسے چاہتا عطا فرماتا ہے۔ اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ بہت بڑی طاقت و قوت عطا فرماتا ہے۔ ان طاقت و قوت سے وہ پیڑ پودوں، پتھروں، جانوروں سے بات کرتے ہیں، بندوں سے مصیبتیں دور کرتے ہیں، دور و دراز کا حالت انہیں معلوم ہوتے ہیں۔ اولیاء کرام کے ان انوکھے کاموں کو کرامت کہتے ہیں۔ اولیاء کرام کی کرامت در حقیقت انبیاء کے معجزات ہیں۔ ان کی کرامتوں کا انکار کرنے والا گمراہ ہے۔ ان سے مدد مانگنا اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کو پسند ہے۔ جو ان سے مدد مانگتا ہے وہ ان کی مدد فرماتے ہیں۔ ان کی مزارات پر حاضری دینا مسلمان کے لیے سعادت و برکت کی بات ہے۔ انہیں دور نزدیک سے پکارنا سلف صالحین کا طریقہ ہے۔ انہیں اصالِ ثواب کرنا مستحب ہے اور برکتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔